हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान सिटी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बायोटिक इंटरेक्शन इकोसिस्टम है। द biological community in an area of ecosystem is a complex network of interaction. The interaction that occur among different individuals of the sum of their species is called to the interspecific interaction. Well, the interaction among two individuals of different species in a community is a term is an interspecific interaction. The interaction between two the organism belong to be a same tropical level, often involved with the competition. The individuality of a population may be complete for the food, space, and the mates. And for example, if a mouse has been eaten by a cat, the other cat competing for this is the resource would be having one less mouse to the prey on. There is snake, another predator of their mice, and would be also have a fever mice to eat during to the night if their cat has succeed. And direct competition through the between the cat and snake is not to be much as they are prey of different time. They also eat a variety of different foods, so competition may be a inter-specific as well as interspecific. And the interspecific relationship may be direct and loss of between to the lion and deer. Indirectly are remoted on the between to elephant and the beetle. There is a battle, and the elephant there is more important here. There is the indirectly competition here, and this is because a interaction between two species and need not be through directly contact due to the connected of nature of ecosystem, and species may be affect to the each other and through the intermediaries such as a share resource are common enemies. A specific term is applied in the interspecific interactions depending upon to the whether the interaction is the beneficial, harmful, and nature to be a individually of the species. The various possible interaction between two species and given here. Here show this table is a possible biological interaction between two species. Their types of interaction and result of on the one species to the other and effect of interaction. Their first is a negative interaction is the monosylism. There is a zero and the one species inhabited while there are other species are unaffected. And there is a second is a predation. Predation is a positive, a predator-prey of relationship. One species predator and benefit will there a second species is prey of harmful. The next is a parasitism. Parasitism is a positive, is beneficial to the one species to parasites and the harmful to the other species, the host. And next is a composition. Composition is a zero, is the reverse effect of the both species. There is a other is a positive associations. There are positive associations is here is a commercialism. Commercialism is positive. The one species to commercialism benefit while the other species has a natural interaction. And next is a neutralism. There is a neutralism is a zero effect. There neither is a species effect to the other host. Is a neither be harmed nor inhabited. And the next is a mutualism. Mutualism is their positive, is the interaction is a favorable to the both species. And the last is a natural interaction, there is a neutralism. The neutralism is a zero, the neither species effect of the other. The positive is the beneficial and the minus is the harmful and zero is a unaffected to nature. दोस्तों यहाँ पर पारितंत्र के प्रकार और प्राकृतिक एवं मानव रूपांतरित चीज़ों की बात किया जा रहा है, जो इसमें मैन मेड आ रहा है और नेचुरल आ रहा है। कहते हैं आपको प्राकृतिक और मानव निर्मित रूपांतरित पारितंत्र के घटकों संरचना एवं कार्य के जो है आपने पूर्व ही इस बात के बारे में हमने चर्चा किया था पिछले वीडियो में। कहते हैं इनमें आपसी में आसपास से कुछ पारितंत्र तंत्रों की पहचान करते हो और उनका अध्ययन भी कर सकते हो। कहते हैं पारितंत्रों का वर्गीकरण प्राकृतिक या मानव रूपांतरित उनकी जो है सौर ऊर्जा, अन्य प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत एवं उर्वरकों और जीवाश्म ईंधन पर निर्भर करती है, और ये बहुत काफ़ी जरूरी भी हो जाता है। कहते हैं अगर प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण हम ले तो हमारे समक्ष आता है तालाब, झीलें, चरगाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल एवं वन। ये हमारी प्राकृतिक संसाधन है और हमें ये खाद्य, ईंधन, चारा एवं औषधि प्रदान करते हैं। मनुष्य द्वारा परिवर्तित यानी पारितंत्र जो मनुष्य की अपेक्षाकृत अच्छी जीव शैलियों के लिए मनुष्य द्वारा बनाए एवं प्रबंधन किए जाते हैं। कहते हैं नगरीय पारितंत्र जो है ग्रामीण पारितंत्र के जो है कृषि पारितंत्र यानी जलीय खेत और अंतरिक्ष यान और मानव द्वारा परिवर्तन पारितंत्र पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दो तरह के पारितंत्र की बात किया गया है। एक प्राकृतिक पारितंत्र जिसमें तालाब, झीलें, चरगाह, दलदल, घास के मैदान, मरुस्थल बना जाते हैं, और एक जो होता है
जिसको मानव निर्मित कहते हैं। ठीक है, मानव निर्मित में जो होता है आपको नगरीय पारितंत्र आ जाता है, ग्रामीण पारितंत्र आ जाता है, कृषि पारितंत्र आ जाता है, जलीय खेती, अंतरिक्ष यान, मानव द्वारा परिवहन तंत्र बनाए गए हैं। तो ये दो जो पारितंत्र है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है, नेचर में, जो कि अपने अपने जगहों पे काफ़ी विशिष्ट होती है। यहाँ पर आगे आ गया है जैव अनंत पारितंत्र क्रियाएं। देखिए, जैव के लिए पारितंत्र कहते हैं किसी क्षेत्र का जैविक समुदाय या पारितंत्र पारंपरिक क्रियाओं का एक जटिल जाल क्रम है। यानी जो जैविक क्रियाएं होती है, आपस में क्रियाएं दोस्तों जो होती है वो बहुत ही जटिल है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्रियाएं समझना आम बात नहीं है। कहते हैं हर एक जीव दूसरे जीवों पर निर्भर है, लेकिन एक जीव पे कई जीव निर्भर है, ये भी बात यहाँ पर आती है। तो दोनों जो होती है काफ़ी विशिष्ट होती है। कहते हैं एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों या विशिष्टि के बीच होने वाली पारंपरिक क्रियाओं को जो है अंतर जातीय यानी इंटर स्पेसिफिक अन्य क्रियाएं कहते हैं। जब भी किसी समुदाय में विभिन्न जातियों के व्यक्तियों या विशिष्ट के मध्य होने वाली पारंपरिक क्रियाओं को अंतर पर जाति यानी इंटर जो है स्पेसिफिक अन्य क्रिया कहलाता है। तो इसमें साफ बात यहाँ पर यही बात बताई गई है कि जो देखिए दो जीव होता है, ठीक है, और दो जीव जो है एक ही जीव पे आश्रित होता है, ठीक है, तो क्या कहते हैं इसमें आपस में ही संघर्ष होने लग जाते हैं कि वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है। तो यही बात बताई गई थी पहले में कि एक ही जाति के विभिन्न व्यक्ति या विशिष्टि के बीच होने वाली पारंपरिक क्रियाएं होती है इसमें, ठीक है, उसको हम अंतर जातीय यानी अपने ही जाति में जो होता है क्रियाएं होने लग जाती है। देखा जाए तो सिंपल लैंग्वेज में जो अंतर विवाह होता है, जो अपने ही जाति में लोग विवाह करते हैं, वो तो विवाह के कंडीशन में आ गया, लेकिन यहाँ भोजन के रिगार्डिंग आ रहा है। तो मैं तो सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया हूँ कि आंतरिक का मतलब जो आपस में ही क्रियाएं करते हैं, ठीक है, और दूसरा जो है अंतर प्रजातीय यानी अपने जाति से छोड़ के दूसरे जाति के साथ, यानी किसी समुदाय विभिन्न जातियों से व्यक्तियों या विशिष्टि के मध्य होने वाली, यानी अपने जात को छोड़ के दूसरे जाति से समष्टि की जाती है, उसको अंतर प्रजातीय कहा जाता है। इसको हम इंटर स्पेसिफिक कहते हैं। तो ये बात काफ़ी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। कहते हैं अगर देखा जाए तो जिन जीवों में पोषण रीति एक ही होती है उनमें अनेक क्रियाएं के कारण प्रायः प्रतिसंघर्ष होती रहती है। तो ये प्रतिसंघर्ष तो होना एक अनिवार्य क्रिया है। आज हर एक जो व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करता है तो उसमें प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। कहते हैं एक समुदाय के विशेष खाद्य स्थान और संगम के लिए एक दूसरे से संघर्ष होते रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखे जाए तो यदि एक बिल्ली एक चूहा खा सकती है, देखिए एक बिल्ली जो है एक चूहा को खा सकती है, लेकिन दूसरी बिल्ली जो इस चूहे को खाने का प्रयास कर रही होती है उनके लिए शिकार एक चूहा कम पड़ जाता है। अगर देखा जाए दूसरी बात, ये तो था जो अंतर जातीय होता है संघर्ष, लेकिन अब जो है जो दूसरा है जो बाहरी होती है, ठीक है, जो अपने जात से नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर सांप और चूहा की बात ली गई है। सांप भी चूहे को खाता है, आपको पता है सांप भी चूहा को खाता है, यानी वह दूसरा परभक्षी है। अंत इसके लिए रात में भोजन के लिए जो है एक चूहा कम पड़ जाएगा। यदि बिल्ली चूहे को खाने में सफल हो जाती है तो वैसे तो बिल्ली को सांप के बीच प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता उतनी अधिक नहीं है, क्योंकि उसके शिकार करने का समय अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो दोनों और भी कई प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं, इसलिए यहाँ की प्रतियोगिता है यह अंतर जातीय के साथ साथ अंतरजातीय भी हो सकता है। देखिए अंतर का मतलब होता है, ठीक है, और अंतरा यानी दूसरे जाति के साथ प्रतिस्पर्धा। जैसे अगर मान लीजिए चूहा एक है और दो बिल्ली खाने वाला है तो ये अंतर जातीय हो गया, लेकिन अंतरा क्या हुआ, जैसे कि बिल्ली हो गया एक चूहा हो गया, ये दोनों अलग अलग टाइम के थे, अलग अलग जाति के थे, दोनों का खाने का डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन इसमें खाना किसको है, चूहा को ही खाना है। तो ये चीज़ें जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए। ठीक है, आगे बताया गया है कि अंतरजातीय संबंध प्रत्यक्ष और निकट की भी हो सकती है। देखिए अंतरजातीय जो होते हैं काफ़ी निकट के भी हो सकते हैं और ये काफ़ी प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। जैसे कि शेर और हिरण के बीच होता है, यह संबंध अप्रत्यक्ष और दूर की भी हो सकता है। जैसे कि हाथी और बीट एक प्रकार के कीट के बीच होता है। इसका कारण यह है कि दो जातियों के बीच का अनेक क्रियाएं के लिए उनके बीच सीधे संपर्क की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बाहरी तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए जातीय मध्यस्थों के द्वारा भी एक दूसरे पर प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे कि साझे संसाधनों का उभयनिष्ठ दुश्मनों के मामलों में होती है। अलग अलग अंतरजातीय अनुयुक्त क्रियाएं
के लिए जो है विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अनुक्रियाओं के जातियों के विशिष्ट के लिए लाभदायक है, हानिकारक है, या लाभ हानि से रहित है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रखता है कि अगर ऐसा स्पष्ट रहा तो इससे लाभ होगा, हानि होगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बात को जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। कहते हैं दो जातियों के बीच जितने भी प्रकार की अनुक्रियाएं हो सकती है वो यहाँ पर हम टेबल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको एक टेबल दिखेगा जिसमें संभावित जैविक अनुक्रियाएं के दो जातियों के बीच संघर्ष का जो है रिजल्ट के बारे में बताया गया है। अगर पहला देखिएगा तो अनुक्रियाओं के प्रकार दिखेंगे आपको, दूसरा होगा एक जाति दूसरे जाति पर पड़ने वाला परिणाम, और तीसरा जो देखा अनुक्रियाओं का नतीजा क्या निकलेगा। अगर देखिए ऋणात्मक अनुक्रियाएं, जो अगर ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक यहाँ है, ठीक है, नेगेटिव क्या प्रभाव पड़ेगा जब जो है अवैधता यानी एमनोलिशियम्स में होगा, तो इसमें एक प्रजाति निषेधित जबकि दूसरी जाति अप्रभावित होती है। अगर वही दूसरा जगह देखा जाए, परभक्षण में देखा जाए, तो इसका प्रभाव पॉजिटिव पड़ेगा, यानी परभक्षी जो है शिकार संबंधित एक जाति या परभक्षी को लाभ जबकि दूसरे प्रजाति के लिए नुकसान और निषेध भी हो सकती है। यहाँ परभक्षी में एक ही बात आएगा कि एक जाति के लिए लाभ होगा तो दूसरे जाति के लिए नुकसान का सबब बनेगा। उसके बाद अगर हम देखे जाए तो परजीविता, देखिए परजीविता का जो है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसका कारण ये है कि एक जाति परजीवी के लिए लाभदायक है और दूसरे स्पीसीज के लिए नुकसानदायक रहेगा, लेकिन फिर भी जो है परजीविता जो है पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा देखा जाए तो इसका जीरो प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों स्पीसीज जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, यानी अनुकूल प्रभाव नहीं कर पड़ेगा, इन दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसके पश्चात धनात्मक यानी पॉजिटिव सचार, यानी यहाँ पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हमारा आएगा सहभोजिता। देखिए सहभोजिता में जो है जीरो लेकिन प्लस प्रभाव पड़ेगा। कहते हैं एक स्पीसीज को लाभ जबकि दूसरे स्पीसीज के लिए उदासीन अन्य क्रियाएं होगी, यानी दूसरा जो होगा उदासीन हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी बात देखा जाए उद्देश्य उदासीनता के ऊपर, तो इसमें तत्स्थल के लिए जो है 0-0 की इफेक्ट पड़ेगा, यानी दोनों में कोई भी स्पीसीज यानी दूसरे पोषी पर प्रभाव डालता है और न ही कोई नुकसान या निषेध होगा, यानी ना तो कोई नुकसान होगा ना ही कोई फायदा होगा। अगर हम देखें समुपकारिता अगर देखें तो पॉजिटिव के फॉर्म में आएगा और दोनों जातियों के लिए अनुक्रियाएं के अनुकूल होगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर हम थर्ड पॉइंट यहाँ देखें जो अन्य क्रियाओं में आती है, यहाँ पर जो है अन्य क्रियाएं में तटस्थ की बात आती है जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कोई भी जाति दूसरी जाति को प्रभावित नहीं करती है, तो ये अन्य क्रियाओं में आती है। What is the interaction may be of various kind. The first is the ammonism. Ammonism is this is a negative association between the two species in which one species is harmed or restricted. There are other species without itself begin to the adversaries to effect or harm made by their presence of other species. Organism that is a secret is a antibiotics, and there are species that get inhabited by their antibiotics together from a example of the organisms, and for example for a fungus is called to the bread mold is the penicillium is produced. The penicillium on the antibiotics which inhibit to the growth of a variety of bacteria. The penicillium is a benefit apparently by the having to the greater ability of food when in their composition bacteria are removed. And second is the predation. In this type of interaction, predator is a capture, kill and eats on animals of other species is called the prey. There is a predator is a naturally benefit from this is a relationship. Well, the prey of harmed is a predator like a leopards, tiger and cheetah use the speeds, teeth and claps there to the hunt and kill their prey. That is the most important here. And parasitism. The parasitism is these types of interactions. One species is harmed and other beneficial. The parasites is there is involved a small size organism, and parasites live in or on the another living species is called their host, from where the parasite get a nourishment of them shatter. That is the most important. And the parasite is a benefit and the host is a harmed. Many organisms like a bacteria, virus, parasite of plant and the animal plants like a double plants, Customacata and the Mistolois is a Lorothermus are. The parasite that alive is a flowering plant
and the tapeworms, roundworm, malaria parasites, maybe bacteria, fungi, virus, and common parasite of human. The next parasite is here. A parasite of the ascaris is a lumbricoids. The infection mass of large round worm from a human infestation. And the parasite is a host relationship. There is our show in this picture. The plant parasite double castacata, and this plant is a parasitic beads that obtain for the moisture and nourishment of attachment to greens living plant. And second is it shown in the diagram. A animal parasite is a ascaris roundworm is an insect parasite found in the human intestine. This will show the parasite is a human intestines in our body. The next is a competition. This is the interaction between the two population in which the both species are harmed to some extent. The competition is occur when two populations or species. The both need to the vital resource that is a short supply. The vital resource could be food, water, shelter, nestings, seeds, and matter of space. And there is such as a competition can be an interspecific competition occurring between the individually of two different species occur in the habit, and interspecific competition occur between the individually of same species. The interspecific competitions is occur between number of the some species, and so it is very intense. And there is a communalism. So the communalism is the most important here. In this relationship, one of species a benefit will there, other is a neither harm and nor a benefit. And some species obtain for a benefit of the shelter are there transport from another species. For example, suckerfish, remora, and often attached to be a shark by means of the it is a sucker which is present on the top of its head, and this is a help to remora get a protection of free ride as well as meals from to left over their shark meal. Their shark does not be however get any benefit nor it is a adversely. The effect by these associations. Another example of commercialism is their relationship between to the tree and epiphytic plant. The epiphysis is like on the surface of other plant like a ferns, mosses, and the orchid that use the surface of tree of support and for obtain need sunlight and the moisture. The tree get a benefit, no benefit from to the relationship nor their harm it. There is the most important. The trees get is no benefit and the no there is a harm it. There is the most important things here. And the next is a mutualism. The mutualism is this is the close association between the two species in which the both the species are benefit. For example, sheep is an anemone. There is a sandrian get attached to their cell of the hermits crabs for the benefit of transport and obtain new foods. Well, there is a nemonome is a provide to the camouflage and the protection of mean to the staining of cell to be a hermit crab. These are here show there the mutualism. The mutualism in the two species. This is a close association between the two species in which the both the species benefit. For example, the sea anemones and sandrians get attached to their cell of hermit crabs for the benefit of transport and obtaining of new foods. Well, their anemones is provided to the camouflages and the protection by means of string cells to be hermit crab. They show in this diagram their hermit crabs. There is the most important figure here. However, some example of the mutualism are such that is the interaction between species can no longer live without each other. They depend totally on each other for the survive. Such a close association are the termed symbiosis. An example of such a close mutualistic association with their that of a termite, and there is a intestinally flagellate, and termite can be eat of foods but have no enzyme to digest it. However, their intestine is a content to contain the flagellate is the parasitic protozoa, and that have a necessary enzyme to be digest the cellulose of their body eaten by the termite and the convert into the sugar. The flagellate there are some of this is a sugar for their own metabolism, and when the enough to left for the as a termite, and both termite is a flagellate cannot be survived without each other. And another familiar example of symbiosis there is the pollination of flower, where the flowering plant are cross pollinated and by the bee with the benefit by the getting nectar from to plant, and both is cannot be survived without the other.
देखिए दोस्तों, इसका बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अभिजीता होती क्या है और उसका क्या कार्य प्रणाली होती है। कहते हैं यह दो स्पीशीज के बीच एक नकारात्मक ऋणात्मक सहचार्य होता है, यानी सहभागिता होता है। कहते हैं इसका नेगेटिव भी प्रभाव पड़ता है और पॉजिटिव प्रभाव भी देखने को मिलता है, जिसमें एक जाति दूसरे जाति को हानि पहुंचाती है। यही संसार का नियम है, उस पर रोक लगाती है लेकिन उसमें अपने ऊपर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने देता है। कहते हैं ये जिंदगी का एक सबब है और ये इंसानों में भी पाया जाता है कि लोग दूसरे पर प्रभाव तो डाल देते हैं लेकिन अपने पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने नहीं देते हैं। तो यही चीज़ें आगे भी काम आती है। कहते हैं अपने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने या अन्य स्पीशीज की मौजूदगी के कारण नुकसान हो सकता है। कहते हैं प्रति जैविक का स्मरण करने वाले जीव और इसके लिए संबंधित होने वाले जीव दोनों मिलकर जो है अभिजीता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी एक को नुकसान होने वाला जीव और बेनिफिट वाला जीव जो है दोनों मिलके अभिजीता का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कवक को ही ले जिसमें बड़े फफूंदी या पेनिसिलियम कहा जाता है। यह कवक पेनिसिलियम नामक प्रतिजैविक उत्पन्न करती है जो कई प्रकार के जीवाणुओं की वृद्धि को संदीप्त करता है यानी रोकती है। इसे इसका प्रत्यक्ष लाभ भी होता है और जो है जीवाणुओं के प्रति स्पर्शता को हटा भी जाने के कारण पेनिसिलिन को अपने लिए अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध भी हो जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात रह गया, पेनिसिलिन का एग्जाम्पल लिया गया है कि पेनिसिलिन जो है एक एंटीबॉडी की तरह काम भी करता है और ये अपना जब जो उपयोग करता है वो उसको भोजन के लिए भी पर्याप्त होता है। यानी दोनों में जो है अभिजीता यानी दोनों का प्रत्युक्त लगा रहता है। दूसरी बात हमारे समक्ष आता है परभक्षण। देखिए परभक्षण इस प्रकार की पारंपरिक क्रियाओं में परभक्षी अपने से विभिन्न जाति के प्राणी जिसे शिकार कहा जाता है को पकड़ता है और मारता और खाता है, क्योंकि ये तो परभक्षियों का काम होता है। इस संबंध में परभक्षी को सहज रूप से लाभ पहुंचता है जबकि शिकार को सदैव नुकसान ही होता है क्योंकि शिकार को अपना जान गंवाना पड़ता है। कहते हैं तेंदुआ, बाघ और चीता जैसे परभक्षी तेज गति, दांत और जो है नखून पंजों का प्रयोग करके शिकार का आखेट करने के लिए करते हैं, उसे मार देते हैं। कहते हैं कुदरत ने उनको इसी प्रकार बनाया भी है तो आखेट करें और उनको जो है अपने तेज नखून से और तेज दांतों से जो है खत्म कर दे। तो ये तो उनका एक प्राकृतिक नेचर है। अगर यही बात हम देखें परजीविता के लिए तो परजीविता इस अनुक्रिया में एक जाति को हानि होती है और दूसरे जाति को लाभ होती है। कहते हैं परजीविता छोटे आकार के जीवों या परजीवियों में होने वाली क्रियाएं होती है जो दूसरे जातियों के अंदर या उस पर जीवित रहते हैं। परजीविता जिसके अंदर या जिस पर रहते हैं उसे परपोषी कहा जाता है। जैसे कि परजीविता को अपना पोषण प्रायः आश्रय भी मिल जाता है। इसमें अमरबेल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आपको पता है कि पेड़ के ऊपर जो है पौधे के बनाए हुआ भोजन को ग्रहण करके अपना जीवन यापन करता है। इसमें पौधों को हानि होता है और जो अमरबेल होता है उसको पोषण प्राप्त होती है। यानी एक जाति को हानि हो रही होती है तो दूसरे जाति को इससे लाभ होता है। कहते हैं यहाँ परजीवी लाभांतरित होते हैं और परपोषी को हानि होता है। बहुत से जीव जैसे जीवाणु और विषाणु पौधे चित्र और आपको दिखाया भी गया है। जैसे आपको पता है कि अमरबेल जो है पादप यानी कटमकुटा जो होती है, ठीक है, और मिस्टोमा लेडेंथर परजीवी पादप जो पुष्पों के पादपों पर जीवन यापन करते हैं। इसमें फीता कुंभी, गोल कुंभी, मलेरिया परजीवी, अनेकों जीवाणु, कवक और विषाणु मानव के परजीवी, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं और दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। सिंपल अगर आप देखो तो आपको पता है कि हमारे पेट में कीड़े जो होते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे न्यूट्रिशन को भी खाते हैं और हमें कमज़ोर भी करते हैं। दूसरी बात लिया जाए मलेरिया परजीवी की। मलेरिया परजीवी हमसे खून भी पीते हैं और अपने बच्चे को हमारे अंदर इंसेक्ट भी कर देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमें मलेरिया हो जाता है। तो कहते हैं हमें नुकसान भी दे रहे होते हैं और वो अपना जो है मुनाफा करते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल है, लेकिन देखते हैं हमारे यहाँ पर चित्र से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाया गया है। एक जो चित्र है अमरबेल एक जारी पर जो है परजीवी पादप के रूप में वृद्धि करता हुआ दिखाया गया है जो कि पौधों के पत्तियों से अपने न्यूट्रिशन लेके जो है वृद्धि करता है। इसका जड़ कहीं भी अटैच नहीं होता, ये धरती से कभी भी अटैच नहीं रहता। ये पौधे के ऊपर जो पौधे भोजन बनाते हैं उसको खा के अपना जीवन यापन करता है और पौधों को नुकसान पहुँचाता है और अपने आप को आगे बढ़ाता है। दूसरा आप देख सकते हो कि अमरबेल बिना पत्ते वाला पादप घास वृक्ष के पत्तों पर रहने वाला दिखाया गया है जो कि सिंपल दिखाया गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हो सकता है जिसे हम ग्रास ट्री भी कहते हैं। उसके बाद आपके समक्ष ये कीट से तो आपको पहचान ही होगा कि ये कीट जो होता है
एस्केरियस लोमेकिडियस का संक्रमण मानव ग्रानी प्रांत वाले गोलकुम्मी है। ये जो है इंसानों के आंतड़ियों में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। तो ये कीड़े से तो आप भली बातें परिचित ही होंगे। इसी वजह से बच्चों को जो होता है हर महीने, हर 6 महीने के बाद दवाई दी जाती है कि बच्चों में ये कीड़ा ना पनपे, क्योंकि ये कीड़े जो होते हैं बच्चों के खून को पीते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद है सपष्टता। देखिए, प्रतियोगिता का अर्थ यही होता है कंपटीशन। कहते हैं ये दो समुदाय के बीच में क्रियाएं हैं जिसमें कुछ हद तक दोनों को हानि ही होती है। जब दो समुदाय स्पीसीज को किसी ऐसे अनिवार्य संसाधन की जरूरत होती है जो कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो उनके पाने के लिए दोनों के बीच हमेशा ही संघर्ष होता है। ठीक है, मान लीजिए एक वस्तु है लेकिन उसके पाने वाला दो है, तो अब दोनों में संघर्ष तो होगा ही होगा। जो जीतेगा वो उसको प्राप्त करेगा। तो ये संघर्ष को हम प्रतियोगिता के नाम देते हैं। यह अनिवार्य जो है संसाधन खाद्य, जल, आश्रय, विश्राम स्थल और जो संगम साथी या स्थान हो सकता है। ऐसे व्यवस्था को निम्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ बताए गए हैं। पहला तो हमारा आता है अंतर जातीय प्रतियोगिता। देखिए, यहाँ किसी एक आवास के भी दो विभिन्न जातियों के बीच होने वाले सपष्टता होती है। यहाँ कहा जाता है कि अंतर जातीय प्रतियोगिता पर एक ही जाति के विशिष्ट के बीच होने वाले सपष्टता होती है। इसमें एक ही जाति की होती है। मान लीजिए एक चूहा है और दो बिल्ली खाने वाला है, तो दोनों आपस में लड़ेगी और लड़ने की वजह से क्या होगा, चूहा भाग जाएगा। चाहे आपने एक बिल्ली की कहानी और बंदर की कहानी तो सुना ही होगा। उसमें एक रोटी के लिए दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही होती है तो बंदर आ जाता है और बंदर जो है सारा फायदा उठा के चला जाता है। तो यही बात आ जाती है कि यहाँ पर दो जो है अंतर जातियों में संघर्ष होती है तो तीसरा जो है फायदा उठा के जाता है। तो यही काफ़ी तीव्र या प्रचंड भी हो सकती है, यानी घातक भी सिद्ध हो सकती है। उसके बाद है सहभोजिता। देखिए, सहभोजिता क्या है? सहभोजिता जो होती है दोस्तों, इस प्रकार के जो है संबंध में एक जाति को तो लाभ मिलती है जबकि दूसरी जाति को लाभ और होता है और ना ही हानि होती है। यानी एक जाति को लाभ ही लाभ होता है और दूसरी जाति को ना तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। कुछ जाति अन्य जाति के आश्रय, परिवर्तन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का लाभ पड़ती है। उदाहरण के लिए हम चुजक मछली या रोमारा को ले, जो कि अपने शीश के शिखर पर मौजूद चुस्कों के द्वारा प्रायः शार्क नामक मछली से चिपक जाता है और इससे रोमोर के संरक्ष जो है मुक्त की सवारी के साथ साथ शार्क के भोजन से भी बचा हुआ भोजन भी मिल जाता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बताई गई है यहाँ पर इसके लिए। यानी यहाँ पर जो रोमोरा है, रोमोरा जो एक बहुत ही विशेष प्रकार के फिश होती है जो कि क्या करती है, शार्क के शरीर में चिपक जाती है। अब शार्क के शरीर में चिपक के ही रहेगी तो शार्क से खाने से भी बच जाएगी और जो शार्क खाना खाएगा उससे जो मिला हुआ कुछ पदार्थ होगा वो भी उसको मिल जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि इसमें ना तो शार्क को हानि हुई ना उस मछली को हानि हुई, दोनों के दोनों अपना जीवन यापन कर लिए। तो इसे जो रोमाना ने एक बहुत अच्छा यहाँ उदाहरण प्रस्तुत किया है। अगर दूसरी ओर शार्क को इसे कोई लाभ नहीं मिलता है और न ही इस प्रकार का सचारे से शार्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। तो इसे सहभोजिता का दूसरा उदाहरण वृक्षों में अंतरपादपीय पौधे के बीच संबंध, यानी अधिपादप जो है अन्य पौधे जैसे फर्न, मांस और शक्रेडो की सतह पर रहते हैं और विश्व की सतह पर जो है उपयोग आलंबन तथा सूर्य के प्रकाश और नमी प्राप्त करते हैं। इस संबंध में वृक्ष को कोई लाभ तो नहीं मिलती है और न ही उसे कोई हानि पहुंचती है। तो ये तो है सहभागिता। उसके पश्चात आता है सहोपकारिता। देखिए सहोपकारिता मतलब होता है किसी में उपकार करना, यानी मायोलॉजिज्म। यह दो जातियों के बीच का एक निकट घना सहचार्य होता है जिसमें दोनों को लाभ मिलती है। उदाहरण के लिए समुद्री अगर एनोमोना और एक एनोडेरिया प्राणी को ले तो ये साधु हेरमिट केकड़ों के कवच से चिपक कर परिवहन और अन्य खाद्य पदार्थ को लाभ उठाता है, जबकि समुद्री एनोफिलन साधु केकड़ा और स्मलमार जो है प्रदान करता है तथा ये दशकारी यानी डंक मारने वाली कोशिकाओं द्वारा संरक्षण भी रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है चित्र में। देखिए ये दोनों ही जो है एक दूसरे के लिए सदैव लाभांतरित करते हैं और दोनों को इससे लाभ पहुँचता है। इसमें जो है एनिमोना और जो नाडोरिया प्राणी जो दोनों के दोनों जो है बहुत काफ़ी चिपक के रहते हैं और अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं। इनसे दोनों को कोई किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो इसी को हम सहकारिता कहते हैं। सहकारिता में और भी बात होती है कि देखिए यहाँ पर बताया गया है कि फिर भी सहकारिता कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ अन्य क्रिया करने वाली जाति एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकती है, क्योंकि जीवित रहने के लिए भी एक दूसरे पर ही पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। और इस प्रकार के निकट जो है सहकारिता सहचार्य का एक उदाहरण भी है। कहते हैं दीमक और उनके आंतों में रहने वाले
कशाभी प्राणी का दीमक लकड़ी जा सकती है, लेकिन लकड़ी को पचाने के लिए उनके पास कोई प्रक्रिया एंजाइम नहीं होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि दीमक जो होती है उसके पास कोई एंजाइम नहीं होता अपने जो है लकड़ को पचाने के लिए, परंतु उनके हाथों में कुछ अक्षाभी प्रोसिस्टा जो प्राणी होते हैं जिसे दीमक द्वारा खाई गई लकड़ी को पचाने के लिए आवश्यक कविक होते हैं, जो उसे शकरा में बदल देते हैं। कशाम्भी प्राणी इसमें से कुछ शकरा का उपयोग करते हैं, अपचय के लिए करते हैं, और शकरा की पर्याप्त मात्रा दीमक के लिए छोड़ देते हैं। और दीमक जो है कशाम्भी दोनों ही को प्राणी एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो इसको हम सहजीवन का एक सुपचारी उदाहरण यहाँ पुष्पों के परागण में देखने को मिलता है। यहाँ पुष्प अगर आप देखोगे तो पादप में जो है मधुमक्खियाँ द्वारा परागणित होते हैं, और जिन्हें पौधे को जो मकरंद पाने का लाभ मिलता है। दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो साफ शब्दों में अगर देखा जाए तो आपको पता है कि मधुमक्खियाँ जो होती है फूलों में से परागकण चूसती है, लेकिन चूसती तो है, उसको देखिए नुकसान तो दे रही है लेकिन फ़ायदा भी दे रही है। फ़ायदा दे रही है कि उस अगर जो मधुमक्खियाँ के पैरों में जो परागण कण होंगे या उसके पास लाया गया परागण कण होगा वो पौधों को मिलेगा, और पौधा जो होगा फर्टिलाइज होगा और फल में कन्वर्ट होगा। तो दोनों को ये यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो ये सारे उदाहरण जो है काफ़ी अच्छा है। और सबसे अच्छा तो था दीमक का, जिसमें कशाम्भी नाम के जीव होता है उसके आंतड़ियों में जो पचा देता है भोजन को, और वो जो है उसको दीमक को भी लाभ मिलता है और कशाम्भी को भी लाभ मिलता है।